Anybody saw this thing on Facebook? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now this is for you all to know, understand it. Now remember, this is a what we call a simple trade process. I copied it from this place and तो you we हम सबका ना कोई तरीका है एंटर करने का. So it's a very simple way of understanding. This is basically to test your psychology. Understand the trade which you are going to take. आपने कौन सा ट्रेड लेना है ना उसको पहले समझो अच्छी तरह. उसमें तीन तरीके की मूवमेंट हो सकती है. Either it is bullish, sideways और bearish. Right? या ऊपर जाएगा या कुछ नहीं होएगा या bearish होगा. यही तीन हो सकते सिनेरियो. चौथा कोई सिनेरियो नहीं. There is nothing known as scenario. Now, if you are thinking price ऊपर जाएगा, that is bullish. तो आपने ये देखना है, is the price is at support. अगर वो सपोर्ट पे है and you are thinking it is going to make a bullish move, if yes, enter the trade. If it's not at support, don't take the trade. सर एक बार रिपीट करोगे? Now we go. सर थोड़ी आवाज बहुत बहुत दब के आ रही है. हेलो, फोन आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, लाउड एंड क्लियर. अरे चेक करो, मेरे वाल तो पूरा ही तगड़ा है. Okay. Now this is regarding whenever you get trade. We have all the ways of taking a trade: moving average, super trend, support and resistance, price action, Bollinger Band, 4-pillar strategy, 10-pillar strategy, stochastic, RSI, everything, whatever you have. Before you enter a trade, we are playing with our real money. So be careful how you are entering, whatever way you are doing. जब भी आप किसी ट्रेड में घुसोगे तो आपका व्यू एक होना चाहिए, या बुलिश है या साइडवेज है या बेयरिश है. तीनों में से एक व्यू होना चाहिए. ये मत लेके चलना कि नहीं बुलिश है तो वो ट्रेड बेयरिश है. आपका व्यू क्लियर होना चाहिए. बुलिश होकर एकदम बेयरिश में नहीं बैठ सकते बिकॉज वो उल्टा हो जाता है. अगर आप बुलिश हो कि आपने यू हैव टू बाय द स्टॉक, then only thing you have to look at is the price at support or not. If it's at support, enter the trade. If it's not at support, don't trade. So it's very clear. Now bearish hai, that is exactly opposite because we are looking at the other side. Now we are looking at the top. This is support, this is resistance. For bullish, we want it to go like this, and for bearish, we want it to come like this. So अगर आप bearish view है and if the price is at resistance, yes, we enter the trade. No, we do not trade. Now comes the role of sideways market. जब तक मार्केट एक रेंज में रहती है, दिस इज साइडवेज. जब इसको सब रेजिस्टेंस को तोड़ेगी हम बुलिश हो जाएंगे. अगर सपोर्ट को तोड़ेगी तो हम बियरिश हो. ये हम प्राइस एक्शन का पार्ट है. वी विल नॉट गो इनटू इट. बट दिस वाज अ जर्नल इनसाइट टू ऑल ऑफ यू हाउ यू शुड एक्चुअली ट्रेड इट. ये दिस इज देयर ऑन द फेसबुक, मैंने डाल दिया है. So if you have time, just see it once. Now I will show you something else. ये बैंक निफ्टी का है ना चार्ट. मैं कैसे बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ. Now let's go to any day. Let's say we go to 7th of December. I'm telling you how I do it. Now you see it how I do it. Now I look for the first high of the day. It should at least spend half an hour, 45 minutes in the market. So I place one line like this. Let's say this is low. And low is here. Now we'll start moving it. Now where the high has gone, I will just move my line. I have to only move my lines twice. Beyond that, I will consider this as a break. Now you see how this line is.
Now this lower was changed to this lower because this is the first low, this is the second low, this is the third low. This line will move up to here. I will show you how I keep on changing the lines whole day. Now you see, this high has gone till here. This is the low we used to have. मार्केट नीचे आ गई, आपने पूरा राइट ऊपर का भी ले लिया, नीचे का भी ले लिया, ये आपका रेलवे ट्रैक बन गया जो हमने उस दिन किया था. दिस इज ऑन 5 minutes टाइम, so you can do it any time. Now you see, now you have one high here and one low coming here. Agreed? Now एक हाई हमारे पास ये भी अब आ रहा है, हम इसको, हाँ, this is a very simple way of doing it, no price action involved. Now you see, it has breached this side. Now this is the one low. Move your line. तो लाइन को आप घुमाते जाएं और आपको पता रखता रहेगा कि आप ट्रेड कैसे दें. अब आपका हाई ये आ गया. Now your low has moved to, this is the low. These are the two lows. बड़ी बड़ी विक्स हैं तो आप इसको just do it like this. अब आपका हाई, या दो हाई इकट्ठे बन गए, ये आ गया आपका. आपका लो इस लेवल कि आपको ये बन चुका. अब आप देखो ये प्राइस एक्शन का बड़ा बेसिक सा एक मैंने फंडा अपने आप सेल्फ डिवाइस किया हुआ है. और दिस इज नाउ यू सी, this is was the two highs which are coming. Had you moved your line here, you would have picked up this breakout very easily. ऊपर चला गया आपका. अब आपके यहाँ पे दो लोज आ गए. You'll have two lows here. So you're trading all the breakouts. अब हम ऊपर जाएंगे. Now our line is here. भाई म्यूट कर लो. कर दिया म्यूट. और ये देखो, मुझे नहीं पता आगे कहाँ मार्केट जा रही है, मैं तो इसी हिसाब से बस कर रहा हूँ कि मुझे दो लोज मिले और दो हाईज इकट्ठे मिले. ब्रेकडाउन मेरा ट्रेड शुरू हो गया कि मैंने यहीं पे पुट बाय कर लेनी है. लेट्स सी कहाँ जाते हैं. अब ये देखो ये हाई आ गया, मेरा हाई वाली लाइन इधर आती है एंड मैं लो वाली लाइन मेरी इधर देखती है. अब ये किसी एक तरफ ब्रेक करेगी तब देखो. अब यहाँ पे एक दो ट्रफ बनने चाहिए मेरे. नीचे गया, अब ये हाई वाली लाइन मेरी यहाँ तो लो वाली. आई एम नाउ मूविंग माय स्टॉप लॉसेस लाइक दिस. So this is another way you can keep on trying whole day. मैं सारा दिन ऐसे ही करता रहता हूँ and keep on trading it. So I sometimes picks a very big move like this. This is a very big move. Boom करके आपको काफी बड़े बड़े पॉइंट्स में आते हैं. और ये देखो, this would have been a terrific move. जिस दिन वो बड़ी मूव हुई है उसमें देखो मैं चलो मैं स्टार्डल में फंसा था, but this move is 1200 points in one go. ये देखो क्या मजेदार मूव आपको मिलेगी. आप कभी भी बाई में नहीं आते इस शेयर में. बैंक निफ्टी में आपने बाय में पूरा दिन नहीं आना था और आपको एक फैग एंड में फिर एक सेल मिली और आपको नीचे बैंक निफ्टी में. तो यू कैन कीप ऑन ट्राइंग दिस, प्लेइंग विद द लाइंस. आई कीप ऑन प्लेइंग. अब ये देखो, ये मैंने तो अभी आपके सामने नहीं, ये तो मैंने पहले की ड्रॉप की है. आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज रही है. लाइव सेशन में इतना अच्छा कराया गया था कि दिस वाज अ साइडवेज मार्केट होल डे. इसमें कितना प्यार से था. आई हैड सेल्ड 35,200 की मैंने ऊपर कॉल सेल की हुई थी और 34,500 की मैंने पुट सेल की. जब वो ऊपर गई थी तो मैंने यहाँ पे सॉरी जब ये नीचे आई हुई थी तब मैंने पुट यहाँ सेल की थी. पहले मैंने कॉल सेल की हुई थी. तो नीचे गिरी, इसको डिके मिला, यहाँ से फिर डिके मिला, तो मैं आराम से बैठा रहा सारा दिन. बैक एंड में वो टूटा भी तो कहाँ गया 35,100. इजी है ना, ये मुश्किल है.
इज इट इजी और नॉट इजी? दो हाइज पकड़ लो, इसको दूसरा पर तरीका क्या? actually ये नजर भी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ बननी चाहिए है, ओनली एक देन सेकंड इट इज वायबल। सर, ये देखो, ये है लाइन डायग्राम। ओके भाई, 2 A's एंड 2 V's डन। कैंडल करो, आ गया सर। अब इसको आगे चल के देखते हैं ना, आगे कहाँ तक जाते हैं। अब ये लो आ गया, इसको दोबारा लाइन पे करके देखो, आपके 20 दो नीचे आ गए, आपका ए इधर ही अभी ऊपर ही रहने दो उसको, वेट करो। अब इसको कैंडल पूरा करो, राइट सर। आपकी रेंज बाउंड मार्केट होगी पूरी, 200 पॉइंट में सारा दिन बैंक निफ्टी घूमी। इट वाज मूविंग होल डे बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। At no point it gave a buy signal except for this one is the only point जहाँ पे आपने सपोर्ट पे जब आई थी, तब आपने ये ग्रीन कैंडल बनते देख के, ये जब सेकंड बनी होगी, नॉट फर्स्ट वन, क्योंकि इसके बाद रेड है, इसके बाद आपका बाय इनिशिएट होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं करता तो मैं यहाँ करूँगा। मैंने एक्चुअली यहाँ पे अपनी पुट शॉट कर दी थी, मैंने यहाँ पे पुट शॉट कर दी, यहाँ पे मुझे प्रीमियम बहुत अच्छा मिल गया, और मैंने स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लगाया, बहुत छोटा लगाया था। एंड इसके बीच में जब तक घूमती रही, बाय द एंड ऑफ द डे 1,500-2,000 रुपये आ चुके। आप इसका टाइम देखो, 10:40, राइट, दिस इज 10:40। और मैंने आज का टॉपिक क्या डाला है, वी आर डूइंग टू डू गो एंड डू ए बैंक निफ्टी algo at 10:30 आवर्स। 10:30 बजे सुबह हम बैंक निफ्टी की एक एल्गो करेंगे। हमने पीछे कैलकुलेट किया था, इफ वी डू ए बैंक डिपॉजिट में हम करें, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो वी गेट अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज सिंगल साहब के, 40 रुपए हमने गिने थे 2 लाख के पीछे, तो 40 रुपए 40 रुपए पर डे। चलो, हम अब कहते हैं कि हमें सिर्फ 10 टाइम्स भी मिल जाए तो वी आर मोर देन हैप्पी, है ना सिंगल साहब? बिल्कुल सर बिल्कुल। मोर देन हैप्पी। So today I'm going to show you this. What happened actually is the maximum volatility in the bank nifty is always during the first 1 hour. तो हमारी मार्केट खुलती है 9:15 बजे, तो कहते हैं 10 o'clock तक बैंक निफ्टी ना बड़ी वॉलेटाइल रहती है। ये टाइम होता है व्हेन वी हैव लॉट ऑफ स्कैल्पर्स कमिंग इन आर प्लेइंग द गेम। स्कैल्पर्स आर प्लेइंग, इसमें अगर इफ एनीबॉडी इज वेरी गुड इन ऑप्शन बाइंग कैन प्ले द गेम हियर। आप चाहे पुट लो चाहे कॉल लो, अगर आप 9:15 बजे से देखोगे, ये देखो ना, लेट्स सी, दिस इज 9:15 कैंडल, आपकी अप गई, कॉल बायर्स ने नोट बनाया, अगली कैंडल ने डाउन मारा, पुट बायर्स ने बनाया, फिर एक इनडिसिसिव आ गया जिसने ऊपर नीचे में गेम खेल लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई, ऊपर नीचे का गेम चलता रहता है। मार्केट जाके करीब 10-10:30 बजे के करीब स्कैल्पर से जब छुटकारा मिलता है, तब ये मार्केट जाके स्टेबल होती है। We are only aiming to earn in Bank Nifty is daily based on theta decay. We are only looking at theta decay. एक फिक्स रूल है, मैं तो इसको सबको एल्गो में करता हूँ, पर ये मेरी इस वाली एल्गो में नहीं है, ये मेरे ना हॉस्पिटल वाले अकाउंट में पड़ी है। So I do a bank nifty daily, मैं काफी करता हूँ algos. I do a lot of algos. My aim is that if on 2 lakh rupees I deploy, the aim is approximately for 2 lakhs I deploy, I should get more than 100 rupees per day. अब कोई पूछेगा 100 रुपीज क्यों सोच रहे हो? 40 ये 1 लाख के पीछे, 40 + 40 80, 20 रुपए मैंने ब्रोकरेज और ये सब डाल के, टैक्स डाल के रखे कि मुझे 100 रुपए से अगर ऊपर मिले तो आई एम गेटिंग मनी मोर देन माई बैंक रिटर्न। So if I get more than my bank returns, if I get more than my bank returns, then I am happy. Then I am very happy कि मुझे इतना मिले।
नो उस दिन हमने एक स्ट्रैटेजी की थी, उसमें सिंगला साहब हमने कितना बनाया था पर डे के हिसाब से? पर डे वाज अराउंड अबाउट 16 टाइम्स, 16 सॉरी टाइम्स 16 टाइम्स था, एंड इट वाज क्लोज टू अराउंड अबाउट 700 प्लस पर डे। सो हम ये लेके चल रहे हैं कि हमने तब एक 16 टाइम्स कराया था। आज हम थोड़ा सा कम वाला कमाएंगे, आज हम कम कमाएंगे, हम ज्यादा नहीं कमाएंगे, बट ओवर लास्ट 4 ईयर जो भी हमने इसको बैक टेस्ट किया, इसने किसी भी मंथ हमारी जेब से पैसा नहीं लिया। 700 वाले में हमारे 2-3 महीने नेगेटिव गए थे। तो आज हम कह रहे हैं कि हमने पैसा चलो कम कमाए, बट हम पैसा अपनी जेब से नहीं देंगे। तो वी आर गोइंग टू सी इज ऑलमोस्ट, यू कैन से ऑलमोस्ट पॉजिटिव रिटर्न सर 300 रुपया भी बने बहुत है। पर मंथ हमें रहे, चाहे 5-10 रुपए भी बच्चे पर जेब से ना जाए, ओवरऑल होता है कि नहीं होता है? सर So what बिल्कुल we now what we are going to do is 10:30 a.m. Pardon my wrong title. 10:30 a.m. Bank Nifty, CE sell, PE sell with 32% stop loss on each arm. 10:30 a.m. Bank Nifty call and a put sell with a 32% stop loss on either arm, और हमने इसको देखना नहीं है। हमारा टारगेट है कि हमें 100 रुपए से ज्यादा पर डे मिलने चाहिए। तो सिंगला साहब कहते हैं कि नहीं डॉक्टर कमल, मैं 100 नहीं, मुझे 300 रुपए चाहिए। हम सिंगला साहब की बात मानते हुए हम 300 रुपीज पर डे, और हम ये भी कहते हैं देयर शुड बी ए पॉजिटिव रिटर्न एवरी मंथ, देयर शुड नॉट बी ए नेगेटिव मंथ फॉर अस। जैसे हमने वो जो 700 वाला किया था, उसमें 3-4 महीने हमारे नेगेटिव भी जा रहे थे। सो हम ये 2 पॉइंट्स अब सिंगला साहब की बात मान के हम ये दोनों के ऊपर अब ध्यान देंगे कि वी शुड गेट दिस काइंड ऑफ मनी। दिस वाज आवर प्रीवियस डिस्कस, इसको मैं कहता हूं प्रीवियसली वी डिस्कस। सिंगला साहब 8 बजे जान के तो 10 देना, क्योंकि क्लास लिए भी लिंक देना है। सो आर दिस इज आर minimum requirement what we are going to have. So this is our strategy, this is our requirement, and this is our strategy, right? ठीक है सिंगला साहब, everybody any issue still now? बिल्कुल जी। Clear? So we will now go and see the back tested result. 10:30 a.m. Bank Nifty call and a put sell. We are a option writers with a 32% stop loss. Same, this is a paid testing. I will share the document with you so you can do it. Call and a put short at ATM, 32% stop loss, 10:30 a.m. our entry time. You can do it manually also. उस टाइम इतनी slippage नहीं होती है। 32% stop loss, 10:30 a.m. is the entry time, and 3 o'clock on the same day we get out of the trade. And what is our way of now getting it? There is no MTM, nothing, कोई target profit कुछ नहीं लिखा, no protect profits, nothing. I've used it. 1st January 2017 to 24th June 2021, the day I backtested it. This is the intraday of for all 5 days of a week. I'm not taken out even a single day. इसको single day अगर आप Friday को अगर omit कर दो तो you get more profits. But I don't think so it's worth it taking it off. So overall profit over period from 2017 to 2021, कितने साल हो गए आपके? 4 साल और 6 महीने, 4 years and 6 months. 4 years plus 6 months. Capital deployed is 2 lakhs.
2 लाख से कम ही होती है, 1.6 लाख होती है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम करेक्ट फिगर लें, हम 1.6 होता है हमें पर उसमें लेने का, अराउंड 1.6 लाख होती है हमारी कैपिटल डिप्लॉयड इन स्ट्रैडल। व्हाट इज योर प्रॉफिट? कोई फटाफट डिवाइड करके बताएगा 5.6 ऑलमोस्ट 5.7 लाख डिवाइडेड बाय 1.6 कितना पैसा हुआ रिटर्न? 16 तिया 48 सर 350% हो गया। 350%, 4 साल 6 महीने में। बुरा तो नहीं है ना? इतना तो आपको कोई भी नहीं पैसा देता। हाँ, हवाला दे सकता है, ड्रग्स के ट्रेड्स दे सकते हैं, शराब बेचने पे सब मिल सकते हैं। And what we are looking at is weekly profit is of around 2,500 rupees. So 2,500 into 4 is 10,000 rupees. Okay, 1.6 ka 10,000 is 6%. That is 72% annually into 4 years makes is 288 plus 36. 6% into 6 months ka plus 36. 4, 1, 2, 324% is the money growth. कैलकुलेट कर दिया आप लोगों को मैंने, राइट और रॉन्ग? मैंने बड़ा क्रूड वे से किया, मैंने आपको दिखा दिया कि जो फिगर्स वहां पे आप बोल रहे हो एक्चुअली उसको मैं ऐसे कैलकुलेट करता हूं। अब आप मुझे बताओ, और आप दिन का सिर्फ कितना कमा रहे हो? 517 रुपीज। सिंगला साहब की पहली कंडीशन होगी 300 रुपए से ज्यादा होना चाहिए, तो 517 हो गया आपकी पहले तो मैंने पहली कंडीशन आपकी फुलफिल कर दी। बैंक से तेज पैसा डबल करने का तरीका, डबल क्या ट्रिपल करने का भी तरीका पैसे का। एंड आपको कितना टाइम लगता है? यू टेक ओनली मिनट्स टू डू इट, और इस पर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो। प्रॉब्लम इसमें कहाँ आती है? खासकर इसमें ज़ीरोधा वालों को बहुत फायदा है, बिकॉज दे कैन पुट अप ए ब्रैकेट ऑर्डर, वो फटाफट ब्रैकेट ऑर्डर डाल देते हैं। एडलवाइस में अभी मुझे ब्रैकेट ऑर्डर डालना बहुत कन्वीनियंट नहीं लग रहा, बट ज़ीरोधा में बहुत आसान है ब्रैकेट ऑर्डर। अब फटाफट डालो और एग्जीक्यूट कर दो 10:30 पे, 1-2 मिनट इधर उधर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपका ये ओवरऑल ये प्रॉफिट होता है। ज़ीरोधा में एक करने को और फायदा मतलब क्या, मैं 317 और 315 के एग्जिट वाली स्ट्रैटेजीज आप डेवलप कर रहे हैं। ज़ीरोधा में ऑटोमेटिकली आपकी वो कट जाएंगे उस टाइम, अगर आपने MIS लिया वो कट जाती है उस टाइम स्टार्ट। अब आप चलो आ जाओ तो देखते हैं कि ये तो प्रॉफिट की बात होगी, अब लॉस की भी बात करने पर। So this is your maximum profit in a month, and this is your maximum loss in a month. And what is your percentage win rate? One must understand all these components. 71%. तभी तो हम बोलते हैं ना, ऑप्शन राइटर्स विन 71% and option buyers only win 29% of the days. So our average profit is on the win days is 1,303, while on the losing day it is around 1,500 rupees. ज्यादा है मेरे लिए। My voice is clear ना? ਸਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਟ ਇਟ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ 32% ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਾਪ ਲਾਸ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਫ ਯੂ ਮੇਕ ਇਟ 26%, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵਿਨਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? चलो देख देगा, लेट्स डू इट। सो विनिंग स्ट्रीक्स आपके कितने दिन रहते हैं? 16 डेज। लूजिंग स्ट्रीक्स कितने हैं? 5 दिन लगातार, एक हफ्ता हो सकता है आपको पूरा लॉस आया, तभी तो ये इतनी बड़ी फिगर आई आपको। जब कोई गंदा मंथ आएगा तो ऐसे होगा। तो अब हमें ये देखना है कि हम महीने के एंड में लॉस में तो नहीं खत्म हो गए। तो हमने अगर एक्चुअली अगर काउंट किया है, अगर वी गो एंड सी फॉर नियरली 1 year
differentiate. Our stop losses didn't get hit on any of them. 4 साल में से 1 साल हमारा कोई स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ। हमारे दोनों तरफ के स्टॉप, एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो गया अप्रोक्सीमेटली 2 साल। ये देखो जिस दिन मार्केट ऊपर जाके नीचे आई, दीज आर ऑल्सो 112 डेज जहां पे सबसे ज्यादा लॉस हुआ। प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा लॉस इस दिन होता है, ये सबसे खतरनाक दिन है। तो अब देखते हैं कि डज इट मेक अ डिफरेंस टू आवर रिजल्ट। अब कोई भी मंथ, अगर सिंगला साहब की नेक्स्ट थी, कोई भी मंथ नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। सिंगला साहब कोई नेगेटिव नजर आ रहा है तो मैंने भी दिखा दियो। सर नॉट इवन अ सिंगल, रादर जीरो भी नहीं गया। एक में 8 रुपए मिले लास्ट में, 8 रुपए मिले, 8 रुपए मिले। बट आप ये देख के चलो व्हाट एन एवरेज, मैं आप लोगों को ये जो बात बता रहा हूँ, अगर हम इसको 9,000 और 10,000 हमारा एवरेज जो आ रहा है, हमारे वो मंथ कितने सारे हमारे अप्रोक्सीमेटली वहीं पे, कोई ऐसा मंथ नहीं। ये देखो इससे वीकली मंथ है, आउटस्टैंडिंग मंथ 52,000 रुपीज। अरे कौन सा मंथ है? कोविड का, लॉकडाउन का। ये कोविड के बाद वाला मंथ जब मार्केट क्रैश कर रही थी, आपको तो 1 लाख रुपए तो ये 2 मंथ्स नहीं दे दिया। इससे ज्यादा गंदा टाइम तो नहीं हो सकता ना, मार्केट क्रैश कर दी है, आपको उसमें भी वो पैसा दे गया। ये तो वो 2 सबसे गंदे मंथ हम कहते थे ना, कि जब हमारे सबसे गंदे मंथ है, उसमें भी ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल स्टार्टिंग। एनी क्वेश्चन स्टिल नाउ? एनी क्वेश्चन स्टिल? Kapil ji, यस sir, how different it is from the 11 a.m. strategy, sir? टाइम 11 a.m. टाइम We एंड discussed- स्टॉप लॉस का डिफरेंस है। उसमें 30% स्टॉप लॉस है, इसमें 32% स्टॉप लॉस है। मैं भी देखो सी, आई लेट मी चेक इफ आई हैव सम क्रेडिट पॉइंट्स इन स्टॉक मार्केट। मैं भी आपको लाइव भी दिखा देता हूँ, इसमें कुछ आता है ऐसा कि नहीं आता कुछ, क्योंकि हमारे पास ये वाले भी तो 2 गंदे महीने हैं, अक्टूबर नवंबर वाले। ये दिसंबर भी बहुत गंदा चल रहा है, तो क्या पता, हो सकता है इनमें कोई हमें एक पहला नेगेटिव मिल जाए। मैंने अभी चेक तो किया ही नहीं। ठीक है सिंगला साहब, सर बिल्कुल। आप ये देखो यहाँ पे आपको सब नीचे आ जाएगा। एवरेज डे प्रॉफिट -22, लॉस वाला मंथ है। 485, 444, 145, 201, 468, 79, 139, 85, -147, 42, 476, 46, 514. आपको आप यू कैन गो एंड चेक बैक ऑन योर सेल्फ, यू कैन जस्ट गो 933, not bad. So there are ways. Now let me see, अगर मेरा स्टॉक मार्केट में मेरे पास पॉइंट्स बचे होंगे तो आज टेस्ट करके देखें। सबको लगेगा नहीं तो डॉक्टर कमल बना के ले आते हैं। तो स्टॉक मार्केट, सर स्टॉक मॉक दा पेड वर्जन किन्ने दा? पता नहीं, कोई पॉइंट्स था अंदर, 1500 रुपए दे 150 पॉइंट होते हैं। ओके, so what was our position? We have to sell a bank nifty. So we have to sell, sorry, options. So bank nifty options call, we sell ATM 1 lot, add. So we have sold 1 this thing. Now we sell 1 put. We put up a stop loss of 32%. 20 पॉइंट रह गए मेरे पास में, इतना टेस्ट करता हूँ कि मैंने 20 पॉइंट छोड़े। सो वी एंटर एट 10:30, वी एग्जिट एट PM। सर यही था ना, हमने यही डिस्कस किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दिस इज 1 जनवरी टिल नाउ। So let's do a back test. 15 पॉइंट रह जाएंगे बस। तो फिर नया लूंगा, जब पैसे आ जाएंगे फिर मैं नया ले लेता हूँ।
बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा बिकॉज दे डोंट लाइक आलू। Many people don't like algo. So we have got a profit. तो आपका प्रॉफिट कितना था 5,60,000 से बढ़ के 6,16,000. Okay, now let me first save it. Let me first save it. मेरे को निकल जाता है पिक्चर में से दोबारा मैंने एक बार 3 बार बैकटेस्ट गलती से प्रेस कर दिया तो लेट मी सेव इट फर्स्ट प्लीज बियर विद मी. तो मैं आपको दिखाऊंगा कि सिंपल हाउ सिंपल इट इज डू इट, नॉट दैट डिफिकल्ट. आप बस करने वाले बनो एंड देन वी विल सी इट हमारे पिछले और इसमें कितना फर्क है. यार ये बंद कर दो, मेरे कान में टंग टंग बजाते हो सारे. EMF 10:30 AM. So now we have that result. Now we will not discuss it. Our profit in 6 months have increased by 60,000 rupees. इतना ही था ना, या 50,000 बढ़ गया 6 महीनों में. हमारी पर मंथ इनकम इज अप्रोक्सीमेटली 8,000 रुपीज. हमारी एक्सपायरी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट सेम है, डेली भी हमारा सेम है, मैक्स प्रॉफिट भी उतना है, लॉस भी हमारा अप्रोक्सीमेटली उतना ही चलता है. एवरेज प्रॉफिट ऑन द विनिंग डेज एंड लूजिंग डेज आर द सेम. दिस इज आवर विनिंग परसेंटेज, दिस इज आवर लूजिंग परसेंटेज. सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा. हमारी मार्केट ऊपर नीचे इधर उधर भाग गई वो है. मैक्सिमम विनिंग डेज आर अगेन 16 and losing days are still maximum are 5 days. No stop losses hit at 272 days. 820 days में हमारा एक साइड का स्टॉप लॉस हुआ और सिर्फ दोनों साइड का जो स्टॉप लॉस हुआ ये 122 था. 6 महीने में सिर्फ 6 बार ऐसे हुआ. सॉरी 112 था, तो 6 महीने में 16 बार हुआ. दैट मीन्स लेस देन ट्वाइस ए मंथ, around 2 to 3 times a month. Now let's see, go and see कि कब क्या होता है, क्योंकि अब मैंने भी ये रिजल्ट नहीं देखा. अब इसको हम देखते हैं कि अगर हम कोई दिन हटाते हैं तो हमारा कितना फायदा होता है. फ्राइडे अगर नहीं करते हो ट्रेड तो 562 है. 556 अगर हम फ्राइडे को ट्रेड ना करें. मैंने आपको पहले ही बोला था अगर आप फ्राइडे को ट्रेड नहीं करोगे आपका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता है. अगर आप एक्सपायरी को भी निकाल देते हो आपका थोड़ा सा और बढ़ता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आमतौर पर दोनों तरफ के प्रॉफिट. ये देखो जैसे ही मैंने एक्सपायरी हटाई तो 47 डेज 128 से सिर्फ 47 डेज रहे. एक्सपायरी वाले दिन ऐसे होते हैं आमतौर पे आपके दोनों तरफ के स्टॉप लॉस, क्योंकि उस दिन कुछ भी नहीं होता ना. प्रीमियम क्या होगा, 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए, उधर दोनों तरफ हिट मारा. अगर आप एक्सपायरी वाला दिन निकाल दो आपका प्रॉफिट 500 रुपए रह जाता है, बट आपको जो लॉस वाले दिन है वो आपके यहाँ पे बहुत कम हो जाता है. दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट होने का पेन होता है. तो वी ट्राई टू जगल अराउंड. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए. ये तो दे आर वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज टू डू इट. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो कभी भी नहीं किसी को छेड़ना चाहिए. ये आमतौर पे एक्सपायरी वाले दिन को हम अवॉइड करते हैं. आ गया लॉस इसमें. दोनों में शीट्स में डिफरेंस देखा आपने. उसमें लॉस नजर नहीं आ रहा था, उसमें लॉस नजर आ रहा. ये बैक टेस्टिंग में भी है इश्यूज आ गए, क्योंकि ये हमारा मंथ जो इसमें है इसमें ये प्रॉफिट दिखा. 506 मई का मंथ है ना, मई का मंथ, इसमें ये लॉस.
यहाँ पे हमारे पास 4 बार लॉस है बैक टेस्टिंग। इतना वेरिएशन तो हमारा चलता है, पर ओवरऑल आप हमारा प्रॉफिट देखो जिस तरीके से उसको काउंट करते हैं। वी आर स्टैंडिंग एट दैट, ये और इसमें आप कंपेयर करो तो जो है। So we are looking at 6,10,443 over last 5 years. इधर हमारा प्रॉफिट इज 5,69,000, मतलब वही आपको ऑन एन एवरेज महीने का 8,000 रुपये 8,000 to 10,000. So this is how these strategies keep on working. अब किसी को कोई क्वेश्चन है? ओवरनाइट स्ट्रैटेजी तो आपको उसमें कराई थी ना दीप चौहान जी, उन्होंने विभिन्न ने कराई हुई है, उसका तो यूट्यूब पे चैनल भी पड़ा हुआ, वीडियो पड़ा हुआ है। वो तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, वो तो मैं अभी ट्रेडट्रॉन में भी कर रहा हूँ। हाँ ये बताइए, ये देखो अभी ये इसमें भी करीब अभी मैं करीब 15,000 प्लस 18,000 प्लस चल रहा है, 18,700। अभी देखो इसमें कितना बड़ा ड्रॉप डाउन भी नीचे है, ये ओवरनाइट सेलिंग है। इसमें क्या होता है कि वो मतलब 3 बजे हम लोग सेल करते हैं एंड वी कवर इट अप एट 3 o'clock नेक्स्ट डे। भाई इसको हम ऐसे करते हैं इसको। एनी मोर क्वेश्चंस एनीबॉडी हैज या तो पूछना तो पूछ। क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ा बोरिंग है सर। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਸ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਨ ਸਾਈਡ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਲੈਟ ਇਟ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਪੁੱਟ ਸੈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ that is a very good strategy. Now let me now come on to this one. अब आज सिंगला साहब ने छेड़ दिया, आपने एक एटीएम स्ट्रैडल बेचा, ये आपने पुट एक बेची है और एक कॉल बेची है, और इसको अगर कोई अपने मैनुअली करता है तो ये कर लेना, इसमें लॉस नहीं कभी हो सकता। और से आपने दोनों 100 रुपए की बेची, कभी वैसे एक्चुअली होता नहीं है, एक 130 होगी, ये 100 रुपए की। Now presume आपने दोनों 100 की है, ये पुट है ये कॉल, और सडनली मार्केट स्टार्ट्स टैंकिंग डाउन, मार्केट नीचे गिरता है, ये पुट बढ़ के 130 की होगी। लेट से आपने इस प्राइस पे थी, आप इमीडिएटली इसके वेरी नेक्स्ट प्राइस के पुट बाय कर, जिस रेट पे पुट बाय कर, यू विल नेवर हैव लॉस, आपको लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट एकदम जीरो हो जाएगा। आपको हो सकता है 100 मिले या 200 रुपए मिले। दिस इज एन अनदर वे ऑफ ट्रेडिंग अगर आपने मंथली स्ट्रैडल्स करनी है। लेट मी नॉट शो यू हाउ इट इज। ये देखना है कि कंफ्यूज हो जाओगे, करना है कि रहने दीजिए? नहीं नहीं सर करो। तो बड़ा डिफरेंट तरीके से गुजरात गैस ने आपने बैंक में फ्री ली। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਸਰ, ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਡੂ ਦਿਸ?
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਲਾ ਚਲਾਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਬ ਫੋੜਦਾ ਅੱਧੀਆਂ चीज़ां ਦੇ ਤਾਂ। पता नहीं है, नहीं आ गया जाते जाते ना। अगर आप इसको देखो, दिस इज योर एटीएम स्टार्टर, कौन सा तरीका 30 दिसंबर। So let's say we do a straddle tomorrow। हम ये जाके सुबह बोलते हैं कि हमने सुबह अपना एक स्ट्रैडल कर, हमें 35,000 का स्ट्रैडल कर। तो हमारी सेफ्टी क्या है? 34,640 टू 35,362। एक्चुअली आपके इन दोनों प्रीमियम का जो टोटल होता है वो दोनों तरफ आपका सेफ्टी 50-50% चांस है कि आप प्रॉफिट में, 50% चांस है कि आप प्रॉफिट में नहीं। अब करना क्या? Now suddenly market starts moving on one direction। मेरे पास तो है नहीं, तो मैं आपको लेट्स से ये 130 वाली आपकी पुट नीचे वाली मार्केट सडनली गिर के ये हो जाती है 174। आपने 134 की आपने बेची हुई है ना, मॉडिफाइड आपने 134 की बेची हुई है। सडनली ये बढ़नी शुरू हो जाता है, मार्केट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। आपने 130 में 30% मिला, दैट इज इट मेक्स अराउंड 39 रुपीज। जैसे ये 170 क्रॉस करेगी, आपने 34,900 की पुट बाय कर दी, इमीडिएट बाय। You will buy it and you will not then look at it, क्योंकि अब आपने इसको डाउनवर्ड प्रोटेक्शन अपनी पूरी खरीद ली बाय बाइंग दिस पुट। और 30 पॉइंट्स में, और इसकी जो नीचे वाली पुट आपने जो बाय की होगी उसमें करीब 50 रुपीज का गैप है। एंड कीप ऑन प्रेइंग कि मार्केट रिवर्स ना मारे। तो आपको तो ये तो 228 पूरे मिलेंगे, तो जाएंगे तो सिर्फ ये 50 पॉइंट। आपका नेट गेन कितना हुआ? समझ आया? फंडा समझ आया? ਇਹਦੇ ਦੂਜਾ ਫੰਡਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ ਲਾ ਲਈਏ, ਲੈਟ ਇਟ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਵਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੇਨ 39 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਗੇਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ 228 ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 170 ਆ ਗਈ। साहब अब देखा नीचे क्या है? हाँ, प्रोटेक्टेड। डिफरेंस क्या था? 34 पॉइंट का। मैं कह रहा हूँ 50 पॉइंट का भी डिफरेंस हो जाए। आपका 9,000 से प्रॉफिट कम होकर 6,000 हो गए, 5,000 हो गए। आप जेब से पैसे तो नहीं दोगे ना स्टार्टल में। तो बिल्कुल और ऊपर की प्रोटेक्शन कम होगी आपकी। वो आपकी वन साइड वाली थी, वो ज्यादा थी। मतलब वहां पे हमने जो स्ट्रेटजी अभी करी है ना, वो वन साइड वाली जो है वो हमारा ज्यादा कट रहा था, मतलब किसी भी साइड पे। तो वो समझ आ गई गेम कैसे खेला मैंने। सब बहुत बढ़िया। आप इमीडिएटली प्रॉफिट में आ जाओगे, क्योंकि आपका इसका जो लॉस है वो इसने कंपनसेट करी जाना है। वो डिफरेंस ऑलमोस्ट बराबर ही रहेगा बाय द टाइम ऑफ द एक्सपायरी। वो बराबर ही रहता है, वो कहीं नहीं भागेगा। तो जब इसका ये जो गैप आपने ब्रिज कर दिया, तो आपने अपने प्रॉफिट में से थोड़ा हिस्सा दिया, थोड़ा सा ऊपर का मार्जिन हो गया। बट मैंने आपको कहा है, यू शुड प्रे कि इट शुड नॉट रिवर्स, इट शुड नॉट रिवर्स वॉट एवर मे कम। नहीं तो ये 34 तो आपका नेगेटिव है। अगर ये ऊपर जा रहे हैं तो 230 इंटू 30% मेक 66 रुपीज। जब ये 280 पहुंचेगा, आपने इसको आयरन फ्लाई में कन्वर्ट कर देना। आपने एग्जैक्टली इसके ऊपर की एक कॉल फिर बाय कर लेनी और भगवान का नाम लेके बैठ जाना है, क्योंकि यहाँ पे अनडिफाइंड लॉस है ना। और लेट्स से कि दिस टर्न्स 260, तो हमने इसके ऊपर 100 पॉइंट ऊपर जाके वी आर गोइंग टू बाय। लॉस कितना रह गया? ये 408 नहीं होएगा, ये करीब 1,500-2,000 रुपये होएगा, अनडिफाइंड से कहीं कम, क्योंकि ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है ना।
हाँ ये एक्चुअल सिचुएशन नहीं है। आपको एक्चुअल में उस टाइम एग्जीक्यूट करने में बड़ी परेशानी होती है, आप डर रहे जा रहे होते हैं। उस टाइम आपको अपनी कैपिटल बचानी है बस। कैपिटल बचाने के तरीके 30% पे आप बाय करके बैठ जाओ, कुछ नहीं होता, एक दिन कम के पैसे कमा लेंगे। नाउ आई एम वर्किंग ऑन दिस स्ट्रैटेजी। अब मैं एल्गो इसके ऊपर बना रहा हूं कि अगर आपका एटीएम स्ट्रैडल है और सडनली आपका हो गया 30% से ज्यादा हो गया, वो नीचे की पुट बाय कर ले। अगर वो रिवर्स करगी और ऊपर चलेगी 30%, अगर आप ये मान लो इसमें 30% इंक्रीमेंट हुई है तो इसमें 10% तो टूटेगा। ये 200 से 270 जाने में इसको कितनी मेहनत लगने की, और इसका क्या रह जाएगा? इसका कुछ नहीं रह जाएगा। तो नीचे आके वापस ऊपर जाने में जो टाइम लगेगा, उसमें ये स्ट्रैटेजी आपको पूरा पैसा दे जाएगी। ये आयरन फ्लाई में कन्वर्ट हो जाएगी एंड इट विल बी गिविंग यू अ वेरी लेस लॉस। अब मैं आई एम वर्किंग ऑन दीज काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज, जिसमें आपको दिन में चाहे कुछ ना हो तो 1000 रुपए तो आ ही जाए। एंड व्हाट इज द कैपिटल डिप्लॉयड? अब सिंगला साहब बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है? नहीं सर ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 1:2 1:2 1:2 1:1 ਪਾ ਕੇ 0:0 ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਮੂਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਿਵੇਂ मेरे को टाइम ही नहीं है, मेरे को टाइम नहीं होता, मैं कर नहीं पाता, मैं बंद कर दूंगा, मैं ट्रेड बंद करके बैठ दूंगा। अगर मैं ट्रेड राम से बैठूं किसी दिन करने के लिए ना, जिस दिन मैं फ्री होकर बैठता हूँ उस दिन मैं घांसू ट्रेड करता। आज मैं सिस्टम पे पता टोटल 10 मिनट बैठा। स्ट्रेटजी नहीं ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਕ करता वही तो आपको मैं आप लोगों को वही तो बात बता रहा हूँ कि मैं बड़ा सिंपल एक काम करता हूँ। मेरा एक हमेशा एक है कि यू शुड बी एबल टू गिव ए काइंड ऑफ ए थिंग विच इज ऑलवेज फीजिबल एंड डू रिप्रोड्यूसिबल। मैंने आपको आज बोल रहा हूँ, एक तरीका और है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर कोई करना चाहता हूँ बट इट इज रिस्की, मैंने अभी इसको टेस्ट नहीं किया लाइव मार्केट में, मैं इसको वैसे मैं जरूर देखता हूँ ना। आपने एटीएम देखो 2600 रुपये तो लॉस है, कोई नहीं कल आ जाएगा। गुजरात गैस किवें लॉस हो गया तो उसका प्रॉफिट चाहिए नहीं ये ऑप्शंस में। अच्छा ऑप्शन है। ओके नाउ वी मेक ए आयरन फ्लाई फॉर 23rd दिसंबर। हम कल बना लेते हैं आयरन फ्लाई, मेक ए स्टार्ट 35,000। सडनली मार्केट इधर दौड़ बड़ी तेजी से दौड़, तो एक ऑप्शन तो ये है कि जब 30% होए तो आप नेक्स्ट का वो खरीद लो, क्या कहते हैं इसकी 34,900 की पुट खरीद। एक ऑप्शन ये है आप अगले हफ्ते की जाके सेम 35,000 की पुट बाय। अब जो मर्जी हो जाए आपको नीचे लॉस नहीं। सिंगला सर बिल्कुल बिल्कुल सर। अब मान लो मार्केट किस्मत बड़ी खराब है, मार्केट उल्टे घूमती है सर। कॉल बैक। नाउ प्रे टू गॉड कि मार्केट एक तरफ या सेंटर में खत्म। अगर मार्केट अप डाउन जाती रही आपकी ये दोनों बहुत खराब और ये फिर पैसा लेके जाए। मैं क्या करता हूं नॉर्मली, जिस डायरेक्शन जा रही होती है मैं नेक्स्ट वीक की खरीद लेती हूँ। अब अगर ये 160 हुई है, ये 390 400 के करीब मुझे मिलेगी, 400 450 के करीब मिलेगी। इसमें जो आग लगती है ना वो इस आग से कहीं ज्यादा है। मार्केट थोड़ी भी नीचे गई ये आपकी 600 रुपए की हो जाएगी और इसने आपके बढ़ के सिर्फ 250 रुपए तक होना है। तो ये जो गैप है ना ये पूरा ब्रिज कर देती है, ये इसको पूरा इट विल ईट अवे दिस थिंग।
जब इसका पूरा प्रीमियम ये खा जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए, आप दोनों पोजीशन बंद कर दो। नाउ योर दिस पोजीशन इज गिविंग यू फुल प्रॉफिट। व्हाट माय पॉइंट, इसको जरा ध्यान से समझना। ये मान लो आपकी 200 रुपये होगी, ये आपकी 420 या 450 के करीब आपको मिलेगी ना। जब आपने इसमें 200 रुपये आप और मिला दो, जब आपका इन दोनों का गैप 200 से ज्यादा हो जाए, क्लोज बोथ द पोजीशन, क्योंकि आप तब प्रॉफिट में बंद कर दोगे एंड लेट दिस पोजीशन रन कंटिन्यूअसली। ये होएगा बीच में, क्योंकि नेक्स्ट वीक वाली की आईवी बहुत स्ट्रांग होती है, उसके अंदर बहुत वैल्यू होती है, ये बहुत तेजी से दौड़ेगी, ये कम दौड़ती है। ये आपकी 130 की मान लो 400 होगी, तो ये वाली जो होगी 360 वाली, ये 1000 होगी। ये कभी देख ऑब्जर्व करना, और आपको वैसे भी नीचे की तरफ कोई लॉस नहीं है। अब इसको चार्ट पे खेला करो, मैं सबको ये बोलता हूँ चार्ट पे खेला। 7114 आप प्रॉफिट में जा रहे, वो आपको बेसिकली प्रॉफिट इसको देगी। इसका इनडायरेक्टली वे ऑफ देखने का तरीका, आप इंडिया विक्स लगा लो। अगर ये 16, 17, 18 के करीब आ रही है विक्स आपकी, जैसे अब देखो विक्स नीचे है तो कुछ नहीं होना, जहां विक्स ऊपर जा रही होती तब मार्केट पागलों की तरह भागती। जैसे ये देखो 20 होगी, अभी मार्केट नीचे है, अभी इसको ऊपर आने में टाइम बड़ा लगना है। तो अभी यू कैन नॉट थिंक ऑफ दिस थिंग। आजकल तो स्ट्रैडल एंड स्ट्रैंगल खूब पैसे दे रहे हैं। मेरे यहाँ पे जो स्ट्रैंगल्स और स्ट्रैडल्स मुझे लॉस दे रहे थे, अब सारे बराबर आ गए मेरे, अब सारे प्रॉफिट वाले रेंज में। कीप ऑन लुकिंग एट दिस ऑल्सो। ये जैसे ही 17, 18 के पास आने लगे ना, 17.5, 18 के पास आने, जैसे इसका हाई काटेगी, आपने अपने आप को कवर करना शुरू करना है। अब आपने सेफ गार्ड्स खेलने शुरू करने, बिकॉज आप कभी भी देखो, जब भी ये 18 के पास आती है, इसको आग लगती है ऊपर जाने के लिए। ये आपका 17 अभी आग नहीं लगी, आप जहां पे भी इसको 18 पे देखोगे, इसको आग लगती है फिर एकदम। मैं यूजुअली देखता नहीं हूँ इसको कभी भी, मेरा बहुत ज्यादा शौक नहीं है देखने का, मैं यहाँ से मैनेज कर लेता हूँ। ठीक है सिंगला साहब, लोग बोर हो गए मेरे से। नहीं नहीं सर, So any एक्चुअली ना अगले शॉक्ड स्टेट पहुंच जाते हैं भी, ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल सब कुछ है। आज जैसे पवन सर ने कहा था, आराम से बैठे रहो, सारा दिन मार्केट बोर करती रही, सारे बैठे रहे, कोई बोल नहीं रहा था। उन्होंने भी क्लास में बहुत ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया, कोई बोलता ही नहीं है, कुछ बात ही नहीं करता। उन्होंने धीरे से बंद कर दी क्लास। लंच के बाद देखो कैसे दौड़े। मैंने बिल्कुल आपको ये लास्ट देखो, मोमेंट पे। मैंने जब आप लोगों को गुजरात गैस बोला था, तब वो 626 पे चल रहा था यहाँ पे। सर उसके बाद 32 लगा के आया। 30, हाँ वो लगा के आया। यहाँ मैंने पकड़ा था ना, मैं तो फ्यूचर देख रहा सीगा ना, मैं नाल दी नाल बोल भी रहा सीगा। मैंने आज सुबह क्लास स्टार्ट होते सर क्या बोला था, मारुति, रिलायंस एंड बजाज फाइनेंस विल मेक द डे टुडे। मैंने आज सुबह क्लास होते सर बोला था कि आज यही शेयर दौड़ेंगे और कोई नहीं यही दौड़ेगा, शेयर दौड़ाएंगे। और मैंने यही के ऊपर नजर रखी हुई थी, सारे दौड़े आज। अभी मेरे नजर में सबसे ज्यादा ये देखो, ये तो मैंने ड्रॉ नहीं किया ना, मैंने रिलायंस बोला था ना कि मुझे लॉस नहीं देगा, ये मेरा टारगेट था रिलायंस। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ निकल के मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ कि मेरा यहाँ पे मैंने देखा ही नहीं। एक मैंने टाटा मोटर्स लिया था, टाटा मोटर्स एट एग्जिटेड एट 470, मैंने पूरा एग्जैक्ट 470 पे उसको एग्जिट हुआ, मैंने यहाँ पकड़ा था इसको, जब ये इसको काटा था, ये वाले जो है ना 460, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने यहीं पकड़ लिया। तो ये तो ऐसे ही है, आते हैं धीरे धीरे काम आते हैं। आज इंडिगो देखो क्या प्यारा दौड़ा, क्या रिट्रेस किया और वहीं से उड़ गया फिर। हाँ इंडिगो तो मेरा फेवरेट है ना, क्योंकि मैं देखता ही बहुत कम शेयर्स हूँ, मुझे तो बाकी नजर ही नहीं आते ना शेयर्स। आप लोगों को पता नहीं क्या वो बोल रहे थे वॉच लिस्ट में हिंडाल्को, हिंडाल्को। मैंने देखा ही नहीं, आई डिडंट सी इट। हाँ हिंडाल्को ने भी अच्छा मूव किया है, देखो ना हिंडाल्को का अगर लेट्स ये ਅੱਜ 57 पॉइंट कुछ रुपए ते फड़ाया सीगा। देखो, देखो मैं सबको आपको बोल रहा हूँ, चलो लेट्स क्लोज दिस। आपको मैंने कहा ना कि आपको दिन की 2 हाई कैंडल्स मिलने लग जाएं तो आप उसको मार्क लगाना शुरू कर दो, एक विक को, एक बॉडी को। ठीक है, लो आपका ये था,
सॉरी, नो आपका ये था, पहले 1 घंटे के बाद ये लगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंड हियर। एंट्री हियर, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया। लेट्स से स्टॉप लॉस टच होता है कि नहीं होता है। ये 2 रुपए का स्टॉप लॉस हुआ ना टोटल। हाँ, 2 रुपए का ही स्टॉप लॉस है, 2 रुपए से भी कम का स्टॉप लॉस है। चलो 2 रुपए का देखते हैं क्या होता है, हिट होता है कि नहीं होता है। 5 रुपए तो निकाल गया शेयर। मैंने कोई आपको टेक्निकल नहीं पढ़ाया, क्या हायर हाई है क्या हायर लो है, मैं कुछ नहीं आपको पढ़ाया। मैंने आपको सिंपल बताया कि हायर और लो को पकड़ लो, 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस बनता है, लगा के छोड़ दो शेयर को, जहां जाता है जाने दो उसको, लेट इट गो। वो कहते हैं ना, जा सिमरन जा, वही वाला हिसाब है। ये क्या है, 464 तक गया, 10 रुपीज आपके पास। बहुत सोनी मूव देती है सर। हाँ, आप कोई भी शेयर पकड़ लो, लेट्स से पिकअप एनी शेयर, ब्लाइंडली उठाते हैं, बीपीसीएल उठा देते हैं। आप इसको 22 दिसंबर 10 बजे का, ये 10:10। आई एम नॉट लुकिंग एट, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये इसका लो, ठीक है। लेट्स गो एंड सी इट। बाय, आपका स्टॉप लॉस क्या है, 2 रुपए का, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉफिट, परफेक्ट। थोड़ा बहुत सीख लिया मैंने भी काम करना। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁਣ ਵੀ। ओके, नाउ सी दिस इज अपोलो हॉस्पिटल। मैंने पवन सर को आज बताया, मैंने आज अपोलो हॉस्पिटल में काफी नोट बनाए। नो ड्राइंग्स, लेट्स गो बैक हियर। मैं अपोलो हॉस्पिटल में बेयरिश था आज पूरे दिन में। मैंने ये कैंडल देखी थी ना, मैं बस ये कह रहा था कि इसे रिट्रेस कहाँ करना है और कहाँ रुकेगा, मैं इसको वहां पकड़ूंगा। वन लाइन आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू मेक एन हाई, जहां पे मुझे 2 कैंडल्स इकट्ठे नजर आए, तो मुझे ये नजर आ रहा था, बट ये कैंडल के नीचे नहीं आ रहे थे, सारा कुछ ना ऊपर ऊपर ही चल रहा था। ये मैंने ये 2 कैंडल्स पे उसको पकड़ा। 10 बजे ना आपकी, 10 बजे ये वाली कैंडल थी ना, 10:10। देखो ना, ये यहीं पे आके फंसा हुआ था। इसके ऊपर एक कैंडल की मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी, क्योंकि उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल वाज अ बियरिश। आई वाज ओनली लुकिंग फॉर ए सेल ट्रेड। आप अब इस प्राइस को देखना, और आप पवन सर से भी पूछना, मैंने उनको क्या प्राइस बोला है। अब आप इसको देखो, 48.28, 48.24। मैं 4,000 के शेयर की बात कर रहा हूँ, 4 रुपए के स्टॉप लॉस पे। मैं 1-2 रुपए के शेयर की बात नहीं कर रहा, मैं 4,000 के 5,000 के शेयर की बात कर रहा हूँ। अब जरा बड़े ध्यान से देखना, जब इसने यहाँ पे ये बनाया ना और इसके अंदर घुसा, 14-18 पे मैंने शेयर शॉर्ट कर दिया। ये बीच में एक बार ऊपर आया था, फिर नीचे गिरा था, मैंने 14-18 पे शॉर्ट कर दिया, और मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया, ऊपर का, और मैंने शेयर खुला छोड़ दिया। मैं कहा देखते हैं आज क्या होता है, लेट्स सी इट। एंड आई कवर्ड इट हियर। जब उसने ये सेकंड बॉटम इसी लेवल पे बना, ये बन गया ना आपका, एक ही लेवल पे 2 बॉटम्स आ गए आपके, ये आपका टॉप आ गया। मैंने यहाँ पे 47.65 पे उसको कवर कर दिया, 50 रुपीज का सीधा मैंने गेन पकड़ा। अब आप देखो खत्म कहाँ हुआ, उसी रेंज में ना सर। साइडवेज, बियरिश, बुलिश सब आपके हाथ में, आप कैसे बनाते हो उसको। हाँ, किसी दिन स्टॉप लॉस सेट होंगे तो क्या हो जाएगा स्टॉप लॉस। नो लेट से आपका 4,000 के शेयर में अगर आप यहाँ पे भी अगर ब्रेकआउट होता है, तो आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा 8-9 रुपए का स्टॉप लॉस। और क्या चाहिए आपको, दिस इज 0.2%। मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ गेम आजकल। अब आपका वो है आईटीसी द गधा। मैंने आईटीसी में बोला था ना कि मैंने इसमें बनाए पैसे, मैंने क्लास में ही बोला था कि ये गधे में मैंने पैसे बना लिए। इट्स सच ए यूजलेस शेयर, आई हेट इट लाइक एनीथिंग फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट।
ये था मेरा एंट्री पॉइंट। और ये मेरा स्टॉप लॉस था। यहां से उसने पूरा मुझे 1 रुपए, ये वाला मूव था सर, 10 जब इसने काटा है ना इसको, ये मूव से लेके मैंने यहाँ तक इसको पूरा पकड़ा। दिस इज हाउ आई पिक्ड अप दिस। तो इसको आप करें आराम से बैठ के। तो आज की क्लास के लिए एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस? लोग बोर हो गए हैं सब, सारे बोर। So any more questions or we can close the session, क्योंकि वैसे भी हमने 8 बजे देना है, हो जाए। Nice sir, nice session. Good. Thank you. Okay. Always see these percentage changes, जिसमें ज्यादा बड़े बड़े है ना वो होना। सिंगला साहब, बजाज इलेक्ट्रिकल्स याद है? ये सब बिल्कुल याद है। ये शेयर मैंने यहाँ पकड़ा, पहले यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ा, मैं यहाँ निकल। इसमें डर लगने की बहुत बड़ी गैप है, इसका टारगेट ही। जब इसको ब्रेकआउट कर गया ना, अब अगर ये नीचे नहीं आया, यहाँ पे नहीं, इसको देखो ना, ये इसकी विक रिजेक्शन है, ये विक के अंदर बंद हो गया। अगर ये इट कम्स डाउन, इट विल कम हियर, देन सीधा कम हियर। अगर नहीं है तो दिस इज द टारगेट। अगर इसके ऊपर तोड़ के इसने रीटेस्ट कर दिया 1344 को, then 1600 इज द टारगेट पोजीशन। अब आपको इंडिगो देखो, यहाँ पे अब किसी ने अगर इंडिगो पकड़ा है 1840 पे, तो आपका फर्स्ट टारगेट 2000 समथिंग, नेक्स्ट टारगेट इज 23। चलो ठीक है, बस करें सिंगला सर। So thanks a lot for a very beautiful, wonderful session.